Namaskar. This is part 6 of DC track circuit, and in this part 6 we will be dealing with some topics which are important, like the dead section that can be permitted in a track circuit area, stray currents in track circuits, and what is cross protection wiring. Let us start with the dead section. What is a dead section? As per SEM, Signal Engineering Manual, dead section means a section of a track either within a track circuit or between two track circuits, the rails of which are not a part of the track circuit for detecting trains. इसका मतलब है कि जहाँ पे गाड़ी है, अगर वो पोर्शन पे ट्रैक ड्रॉप नहीं हुआ तो उसे डेड सेक्शन कह सकते हैं. सो डेड सेक्शन, it is a portion of the track in a track circuited area. So track circuited area में वह small portion vehicle which cannot be detected when it is occupied, or a portion of track where both the rails may have same polarity. ये क्यों हो सकती है? Because they may have the same polarity, यानी positive on both sides or negative on both sides, because of which it may not be possible to make the track circuit or short the track circuit. Similarly, the dead section may be due to creep or out of square in a crossover point area, or a track section portion is excluded, चाहे वो लेवल क्रॉसिंग ग्रेड्स ब्रिजेस इस तरह से. इस रीजन से हमें डेड सेक्शन की जरूरत पड़ सकती है. एक एग्जाम्पल की तरह यहाँ पे देखेंगे तो ब्लॉक जॉइंट किस तरह से आती है. दिस इज ड्यू टू अनइक्वल रेल क्रीप पर्टिकुलरली ऑन कर्व्ड ट्रैक. सो ये एक ट्रैक सर्क्यूट है जिसमें ये एक ग्लूड जॉइंट हो और ये एक ग्लूड जॉइंट है. समझिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है. तो अगर गाड़ी इस पोर्शन पे रहती है तो ये हो गया पॉजिटिव और ये भी हो गया पॉजिटिव, तो यहाँ पे ट्रैक ड्रॉप नहीं होगा. यहाँ इस पोर्शन में कोई एक्सिल है तो भी उस एक्सिल से ट्रैक ड्रॉप नहीं हो सकता है. या दिस कैन बी ड्यू टू रेल एंड्स एट क्रॉसओवर्स बीइंग आउट ऑफ स्क्वायर. दिस इज ए क्रॉसओवर, यहाँ पर भी आउट ऑफ स्क्वायर है तो इसको भी डेड सेक्शन कह सकते हैं. और यहाँ पे अगर कोई गाड़ी है, इफ देयर इज ए ट्रेन हियर, द ट्रैक मे नॉट ड्रॉप. It can be due to LC gate. Here you can see this is a level crossing gate और यहाँ पे शायद डेड सेक्शन या फिर ब्रिज के पास भी डेड सेक्शन आने की संभावना है. मे बी बिकॉज ऑफ आयरन स्लीपर्स प्रोवाइडेड ऑन द ब्रिज, इट मे नॉट बी पॉसिबल टू प्रोवाइड ए ट्रैक सर्क्यूट. उसको डेड सेक्शन कहला जाता है. So what is the permitted length of a dead section? Here you can see dead section, if it is up to 8 meters, then there is no problem. Last slide you have seen, in that if the distance between positive and negative rail groove joints is up to 1.8 meters, then it is permitted. But if it is more than 1.8 meters and up to 6 meters, then track circuit on either side should be extended to 12 meters. दोनों तरफ ट्रैक सर्क्यूट को 12 meters पर रहना चाहिए. And above 6 meters it is not at all permitted. So here you can see up 1.8 meters there is no problem, because ये डिस्टेंस जो है 1.8 meters रहती है नॉर्मली और ये 11.7. सो समझिए ये पोर्शन डेड सेक्शन में है तो दिस व्हील्स इस एक्सिल से हमें ट्रैक सर्क्यूट ड्रॉप हो जाना चाहिए. इसीलिए बोथ किस तरफ या इस तरफ ट्रैक, एक ग्लूट जॉइंट यहाँ पे है तो इस तरफ या इस तरफ 12 मीटर्स हमें ट्रैक सर्क्यूट कंपलसरी रहना है. इफ द dead section is between 1.8 meters and 6 meters, and above 6 meters it is not permitted. So now coming to stray currents in a track circuit. So before installation of a single rail DC track circuit in AC electrified areas, measurement of stray DC current shall be taken. So here this stray currents shall be taken only in non-RE area.
This shall be tested can be carried only in non-electrified sections before track circuit is provided, before RE is commissioned. In non-electrified sections only this experiment has to be done. What is stray current यानी जो स्ट्रे डॉग्स कहते हैं, जिसका कोई कहां से आया है किसी को पता नहीं है, स्ट्रे डॉग्स। इसी तरह से स्ट्रे करंट्स कहां से आ रहा है वो हमें पता नहीं है, लेकिन ट्रैक सर्किट में ये वहां पे है। currents are available in the track circuit. These are called stray currents. The length of the track required being track circuit should be insulated by means of block joints on either ends of the rail. तो ये स्ट्रे करंट्स को किस तरह से हमें मेजर करना है, ये ब्लॉक जॉइंट्स रहना है दोनों, जिस ट्रैक सर्किट पोर्शन में हमें लगाना है ट्रैक सर्किट, वहां पे ब्लॉक जॉइंट्स रहना है। The rail joints in the track circuit length may or may not be bonded for purpose of these trains. तो जो बॉन्डिंग हम रेगुलरली करते हैं फॉर बेटर कंटिन्यूटी, वो करे या ना करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ब्लॉक जॉइंट्स जो है उसे कंपलसरी है। तो यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ स्ट्रे करंट की बात करेंगे। तो जैसे मैंने बताया है, ये है ग्लूट जॉइंट्स और हम इस ट्रैक सर्किट को मेजर करेंगे। जैसे बताया है, ये नॉन आर एरिया में ही बिफोर इलेक्ट्रिफिकेशन दिस मेजरमेंट शुड बी डन। व्हेन यू मेजर, यहाँ पे मल्टीमीटर लगा दीजिए, ये एर्थ पॉइंट है जो लेस देन 5 ohms है। तो ये रेल और ये रेल दोनों को मिला लीजिए और एक अमीटर लगा के एर्थ को लगा दीजिए। सो अमीटर विल बी बिटवीन योर रेल्स एंड एर्थ। अगर स्ट्रे करंट लेस देन 10 milliamps मेजर कर रही है फॉर ट्रैक सर्किट लेंथ अप टू 100 meters, सो ये 100 meters तक है, then the measured current should be less than 10 milliamps. Similarly, अगर 100 meters and above, अगर ये ट्रैक सर्किट 100 meters से ज्यादा, समझो 200 meters या 300 meters तक है, और ये एक्सपेरिमेंट जब आप करोगे तो देन द करंट शैल बी लेस देन 100 milliamps. सपोज ज्यादा हुआ, if the measured stray current exceeds the specific limit as above for the length, then यहाँ पे ट्रैक सर्किट को AFTC या कोई दूसरी साधन लगाने की जरूरत पड़ती है, या द ट्रैक सर्किट लेंथ शुड बी डिक्रीज्ड। द ट्रैक सर्किट लेंथ शुड बी डिक्रीज्ड। अगर 300 मीटर है तो उसको 150 मीटर्स या उससे कम करके ये मेजरमेंट्स के अंदर आना चाहिए। स्ट्रे करंट्स, अगर वोल्टेज भी मापना है हम लोगों को, तो वोल्टेज जो है रेल एर्थ मेजर्ड एज अक्रॉस 9 ohms शैल नॉट एक्सीड 100 millivolts। तो यहाँ पे आप मेजरमेंट कैसे करोगे? दिस इज द रेल्स, 2 रेल्स और ये है एर्थ। सो इस दोनों के बीच में आपको एक 9 ohms रेसिस्टेंस लगाना है, या एक रिले लगा दीजिए। The relay which you generally use for track circuit 9 ohms relay, उस रिले को यहाँ पे लगाना है और वोल्टेज को मेजर करना है। इफ द वोल्टेज अक्रॉस द रिले इज अप टू 100 millivolts या उससे कम, then it is permitted. You can use that portion as track circuit for RE area. If it is more than that, then again you have to find out from where that voltage is being developed or reduce the length of the track circuit. Now coming to the third point, that is TR and TPR wiring with cross protection. So this is once the track relay is picked up, we will take this data to our relay room. इसको किस तरह से हम करेंगे? दिस इज नॉर्मल ट्रैक सर्किट, प्लेन ट्रैक सर्किट समझिए, जहां पे ट्रैक रिले पिकअप हुआ है तो मेरा पॉजिटिव सप्लाई इस तरह से जाती है और नेगेटिव सप्लाई ट्रैक रिले से इस तरह से जाती है। सो हियर आई हैव यूज्ड A5 A6 ट्रैक रिले ड्रॉप कॉन्टैक्ट। दिस ट्रैप कॉन्टैक्ट इज नॉट अवेलेबल व्हेन द ट्रैक इज पिक्ड अप, इसीलिए हमारा पॉजिटिव ऐसे A5 से चला जाएगा और नेगेटिव इस तरफ से चला जाएगा। Now what is the reason for providing this
ड्रॉप कॉन्टैक्ट। बेसिकली टीपीआर को सप्लाई तभी जाना है व्हेन ट्रैक रिले इज पिक्ड अप, बट समझिए ट्रैक रिले इज इन ड्रॉप कंडीशन। इमेजिन द ट्रैक रिले इज प्रेजेंटली ऑक्यूपाइड एंड ड्रॉप्ड कंडीशन। उस कंडीशन में इसमें कोई सप्लाई नहीं रहना चाहिए, लेकिन बाई some other means, let us say some foreign feed has come into A and B because of cable shorting, cable damage, or some other reason. Supply has come been A and B. This supply will go and pick up our TPR. इससे जब गाड़ी है टीपीआर पिकअप हुआ एंड टीआर इज इन ड्रॉप कंडीशन, इट कैन क्रिएट अनसेफ कंडीशन। इसीलिए यहाँ पे ट्रैक रिले ड्रॉप है और फॉरेन फीड यहाँ पे आया है, तो ये डेड शॉट हो जाएगा और आपका सप्लाई अपना टीपीआर को पिकअप नहीं करेगा। दिस इज द रीजन व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग दिस क्रॉस प्रोटेक्शन। if you take the same in a पॉइंट जोन, पॉइंट सर्क्यूट में अगर हमें लेना है तो हमें एक टीपीआर लोकेशन को भी यहाँ पे लगाना पड़ता है फॉर पॉइंट ऑपरेशन। तो वहां पे सर्क्यूट थोड़ा चेंज हो जाएगा। जहां पे देखिए अगर नॉर्मली टीपीआर पिकअप है तो सप्लाई मेरा ऐसे आएगा और टीपीआर एल पिकअप हो जाएगा, पॉजिटिव ऐसे आएगा और नेगेटिव इस तरह से आके आपका टीपीआर एल पिकअप हो जाएगा। once TPRL is picked up, the same 24 volts we are taking it in this way to relay room। ये पॉजिटिव हो गया है और नेगेटिव इस तरह से आके क्योंकि टीपीआर अभी पिकअप है, इस तरह से आके हमें रिले रूम में जा रहा है और रिले रूम से आके अपना टीपीआर जो भी है वो पिकअप हो जाएगा। यहाँ पर भी द सेम रीजन व्हाई वी हैव प्रोवाइडेड टीपीआरएल। इफ एनी फॉरेन वोल्टेज इज कमिंग, दैट वोल्टेज इफ टीपीआरएल इज ड्रॉप, ट्रैक प्रूविंग रिले जो लोकेशन में है वो ड्रॉप कंडीशन में है, तो इसमें अगर कोई भी फॉरेन फीड हो यही पे शॉर्ट हो जाना चाहिए। This is fail safe adjustment of a track circuit. You can say a cross protection is a fail safe method. Finally, किसी भी हालत में ट्रैक ड्रॉप है तो मेरा टीपीआर पिकअप नहीं होना चाहिए। थैंक यू। जय हिंद।